The time just plays it straight. Well, he might be struggling to get the singles, but he never struggles to get the sixes, especially of the switch hits. He's known as the father of switch hits in Goan cricket. Although invented by Kevin Peterson, but I guess Sanam Salgaonkar started it in a big way in Goa. And after that, many cricketers started trying and they got themselves a big name because of the switch hit. But he's the one that has started and will always struggle. He always struggles to get the singles. Little injury to his leg. He was out for off cricket for a few months. And maybe 10 years back, Sanam Salgaonkar would have been running shivers down the spine of many of the batters. It's just that after that incident, he can you can consider that he is not the old one, but finally, Tiger is always a tiger. A wounded tiger is even more dangerous than a normal one, as goes the saying. Sanam, whether it's this ground, whether it's Bodh in Mapsa, or whether any of the ground, I've seen him playing single-handed innings for any of the teams that he performs. Such a great finisher, such a great skillful player. Sometimes in cricket, feet movement is very important. You need to move the feet rightly, and that's where I guess he struggles a bit nowadays. This is in the air, falling in no man's land, but that's a good ball here. Bowling from Praveen. I've seen Praveen bowls regularly as an opening bowler for Mandarin boys and gets so much of wickets at the start and gives them a good start. He always gives them a good start. They start with Praveen for most of the matches. Once again, he starts them well, not conceding a single 4 runs so far, 4 singles of the four balls. This is slower ball, left one hand. This is a one-handed six here from Sanam Salgaonkar. Look at the power of this man. I told you wounded tiger is more dangerous than a normal one, and Sanam is a Sanam. You cannot get the talent out of this man. 10 without loss after completion of 1. Many a times in IPL, KL Rahul, Rohit Sharma, David Warner, we have seen them hitting sixes of one hand. It's not easy. Require a lot of power to generate from the forearms and your hands and your shoulders to get it over for 6. You've seen people struggling here, struggling big time to get the sixes, not Sanam. Amit on strike. Full toss ball. Just played down the ground. And good fielding in the deep. Behind the bowler. And it's just going to be a single. It's good to see that small things are taken into consideration here by the organizers. Mohit Choprekar. They knew they had played cricket here. And they had organized a ward-wise tournament for Sodium Panchayat, where 7 teams were participating. Gaurish. This time, very good ball, very good length here, bowling wide outside. Even if it's a low full toss, it's still a good length and a good ball. 7 teams were participating in that inter-ward tournament organized by Ujjwala Tukaram Memorial. This is once again nicely played. Should be, misfielded here. Now they will get the single. The ball kept little low. And that inter-ward tournament finals will be played just before the finals of this Grand All India tournament. We are witnessing some big names. These are big names, real big names in tennis cricket, although they have not flourished well. Prathamesh Matre, Prathamesh Pawar are considered to be big names in cricket. And also many of the players around who have played
for different teams. Ravi Ahire is played in 10PL. So many cricketers coming and playing here. It's a big treat. It's a bigger achievement by Mohit Choprak and also the organizers. And once again, it's just the singles in this over so far. And Sodium people, I think, should be very, very happy to get these such great players here on their ground, which looks very green, and wicket also looks a belter. There is something in for everyone. Both a short ball, that was a slower leg cutter here, short leg cutter, and bouncing little bit less. So very good over here from Gaurish. Just concedes 4 runs, 14 without loss after 2. So bowling power play has been chosen. Yeah, they had to choose this as between 1 to 3. You have to choose the bowling power play. Between 4 to 7, you have to opt the batting power play by the batters or the batting captain. This is a great shot here. This is a very nice shot over the wide long off region field of 4 runs. Once again going the aerial with Sanam. Sohail the bowler. Score moves on to 18. Still both the openers are intact. Lovely ball. Cracking ball. Absolutely plumb. Absolutely plumb. No hesitation here from the umpire. He was trying to go for his favorite shot, the switch hit. This time the bowler was up, one up than the batter, and he strikes. Big man departs. That was really required. That wicket, the first wicket going down. The opening partnership has been broken at the score of 18, and in comes Anant Mandrekar. This is a good shot here. What a pickup shot. This is Anant Mandrekar for you. This is just one instance where the talent shows of Anant Mandrekar. Once again, nicely cut away. Might be a chance of a run out at the non-strikers and quick throw. That was close. That was really close, but good fielding. Overall, a good cricket. Short ball just outside, plays it nicely over the covers region. The fielder comes in quickly, throws it at the non-strikers end, and there was a bowler that was positioned to remove that run out, and the batsman makes it well in. That's a big heave. That's a big heave. Look at the ball traveling there. This is a humongous strike. Maximum once again. Well, he literally whipped it. He just whipped it with his strong power of the forearms for 6 runs. Not easy. It looks easy from outside. Score moves on to 31. This is a better ball.
And the fielders are in position behind the keeper. Dot ball will restrict them, but 2 sixes have come in spite of a wicket taken off Samnan Salgaonkar. 3 gone out of the race. It's 31 for 1. Requesting the organizers to please handle the situation. Well, it's their normal time to play, and we are coming in between their time. And I can understand this might be a problem for just 3 days. But finally, they are going out. That's once again Anand Mandrekar. He hits the gap and hits it well out of the park. Well, Anand Mandrekar is an experienced cricketer. He is really a big name in cricket. And once again, showing his class against the youngsters. Going for that shot. This was not a bad shot. Bad option chosen here. He was going for that wide long off region over the head of the bowler. Right option with the swing, with the spin. Just the ball kept a little low. This is right in the slot. Finds the gap. Might find the boundary. Yes, it does. The fielder tries everything to pull it inside, but it was very well timed. 6, then a dot ball, then a boundary. Score moves on to 41. Dattaraj a little expensive in the first 3 balls. This might not be timed well, but it is timed and placed well. It was placed well. He exactly knew where the fielders are placed. So he's going the aerial way and he's finding the very good results for his team. So now maybe that ball need a searching. So search party is on from the organizers. But the ball is thrown here by Jay Bosley. So let's see what ball they choose. Well, with the way Anand Mandrekar is batting, it doesn't matter for him. You can get any balls and he will still time it and place it for 4 runs or the boundaries or the 6s. Right now, it's very well poised here for AM cricketers. 45 at the moment. 14 runs have come of the first 4 balls. And he has peppered every part of the ground, especially in front of the wicket. That mid-wicket region, that long-off region, the long-on region. Once again, he will be back on strike. Time just a single taken. Once again, this is good bowling, a good comeback, but I think
Still, in spite of getting a single of the last ball, Anant Mandrekar has taken a toll of the Raj in this over. 15 runs taken in that over. It's 46 for 1 in 4. So batting power play has been chosen. 3 overs are still left and it's still looking a good total. They've got the batters. Amit has scored 1-6. But if at all somebody has changed the match in favor of AM cricketers at the moment with 3 overs left is Anant Mandrekar. So the Mandrekar is playing against Mandrekars well here. It's Anant who is playing an innings that is certainly taking the match away from Mandrem boys. Sam just did not time the ball. He goes to run for the second, but he's not that quicker now. Maybe another 3-4 years back, he could have gone for the second. But still, with the talent that he has, he can still do a good job from the non-striker's end. When he gets the strike, when he gets an opportunity, he can put the loose ball away. That was a full toss ball. Nihal, the bowler, finds the gap. There is a wide open space in the mid-wicket region. And it's 4 runs. It's Glenn the bowler. This is a Supla shot and gets the 4 runs. On one knees and plays that shot well. Surya Kumar Yadav plays it, but now Amit also plays it for AM cricketers and gets the 50 as well. In fact, they got the 50 of the previous ball, and this goes into the double figures of 5-5, 55. Another expensive over slightly. First 3 balls costing 9 runs, 2 boundaries. Pressure on Glenn. This is in the air. This is a good ball. This might be a catch. And it's been dropped here. They are giving chances at this stage. Well, they are taking the match away from you. They are giving one chance. That's a rare chance. And this rare scenario, like a diamond coming to them. And they say, we don't want diamond. We are gold people. Just 2 runs taken. So the 2 runs taking the score a little ahead. Maybe the sun falling in the eyes, but there is no chance for excuse here. This was also not timed well. Well, everything is going in favor of AM cricketers at the moment. They are feeling so lucky. The keeper was thinking maybe it's my catch. I need to go forward. It was once again in no man's land. 57 at the moment. 11 runs coming off this over and still 1 ball left of the 5th over. A nice total. They are certainly going to ahead to around 70-75 in 7. Good leg spin here. Whipped on the leg side. I don't understand. Just 2 fielders around. Maybe they could have kept the mid-wicket region. He just plays a half helicopter, half flick shot for a wonderful boundary. So good over nevertheless. That concludes over number 5. Is 61 for 1.
In comes Gaurish. Second over for him. Sixth over for the side. They stand slightly wide. Mandarem boys are certainly known for their bowling. Their bowling is their stronger part, but doesn't look to be today. They have been a little awry in their bowling department, and the batters have taken the advantage. Trying to heave it. That was right in the slot. Not a bad option chosen here by Anand Mandrekar. They have got wickets in hand, and with 11 balls left, I think they need to go after the bowling and try and get as much as possible. They cannot blame the batters at this stage with all 9 wickets left. The bowling of Gaurish is pretty good. He's bowling fuller, mixing it up well, just bowling the slower leg cutter here and there sometimes. And accurately enough, accuracy is the key for the bowlers. Ah, cracking ball. What a delivery this is. Magnificent. Chance of a run out at the non-striker's end. Direct hit. Umpire says he makes it in. Anand Mandrekar was ready to go for the next one. What a good backup by the fielder at the long on region. So overall, a wonderful cricket. Look at this delivery. Full effort, right on the toes. The bat came on time, and they a quick single and a good throw from the keeper as well. This is the cricket that we want to see in such a big tournament. Once again, he is hitting the Yorkers perfectly. Well, Bumrah might be missed in the services in IPL for Mumbai Indians, but Gaurish is saying, if you are missing Bumrah, come here and watch me. Well, it's very difficult to bowl Yorkers, especially 3-4 Yorkers in that same over, and he's consistently targeting that. This is in the air. This is a slower ball. Change of pace. Might be a catch. And catch taken close to the boundary rope. Very nicely judged in the deep. Anand Mandrekar, after a heroic innings here for his team. There's a very good knock from his side. Departs in the 6th over. GA11E 4499 ही जी गाडी आसा म्हाका दिसता ती इनोवा ही गाडी फाटल्या ज्या गाडी आसा तांकां ब्लॉक करता 4499 ही गाडी इनोवा कोणाची आसा ताणें मातशें सायडीन काडचें बाब तुका रिक्वेस्ट आसा कारण बाकीच्या लोकांक त्रास जाता तुवें गाडी काडली जाल्यार म्हाका दिसता परत येवन तूं गाडी त्या जाग्यार पार्क कर पूण सद्याक मातशे लोकांक जे त्रास जाता तांकां मातशें आपली बायक काडपाक मेळुनी गाडी काडपाक मेळुनी देव बरें करूं तुका. So here comes the last ball of the 6th over. Pritesh. What a shot. What a spanking shot this is. Just facing the first ball and he gets a maximum. This is a super strike. He just swatted it over the mid-wicket region for a U6. 70 after completion of 6 overs. So it will be the last over here for Mandarem boys. And good to see that their matches are held in progress in one side itself, because we have one more match, that is the quarterfinals left after this one. And one more innings of this match. So important to see that the match is continuously progressing in a quick time frame. Score is exactly 70 in 6 overs. So they have gone past their first target of 70. Can they get 80 runs, which is not going to be an easy total. 80 is somewhere around 12 runs per over.
बॉल मातशें वेट आसा म्हणून दवरल्या, मातशें ओले आसा. होतोच बॉल बरो आशिल्लो. So this will be the last over. I think that they are okay with this ball. So the previous ball comes back here to the organizing team, requesting them to please hand over the ball in the commentary box. माचे रिक्वेस्ट करता जे बॉल्स आसा ते माचे कमेंट्री बॉक्सान हँड ओवर करचे. And the bowler is Glenn. So the leg spinner has been told to do the job of pulling the last over. How much can he restrict these batters? This is very good line. This is a perfect length. If we can bowl 3 balls here, batters are going to find it difficult. Amit on strike. Pritesh comes and strikes a big one of the very first ball. Once again, we have to wait for the umpire signal. This was slightly wide. Very well watchfully left here by Amit. AM cricketers so far getting 71 with 5 balls left. 80 runs is not going to be easy to chase, especially when the sun is going down. Ah, that's a good whipped it. Look at the whip, quick whip. Fast hands coming from Amit, but getting the single because it was almost a Yorker length delivery here from the bowler. Started off well here, Glenn. This time, just going to be a single. So far, it's just the singles at the moment. Oh, the score here is 73. Maybe all the bowlers have been taken for runs, especially by Anand Mandrekar and then by Amit, with 6s and boundaries. All the batters have played decently with at least 1 6s. 1 6 under the name. Slog shot for a single. Fielder does a fine job, throws it back to the keeper straight in the hands. A good throw from the deep. This last over has been a good one here. He's not allowing them to reach towards at 80, but still the balls are left. 4 runs of the first 4 balls. That is the last over. Short ball should be a catch. Who is going to take it? Bowler says it's mine, and he takes it comfortably. Caught and bowled here, and the wicket departs. Very good comeback by Mandarin boys through Glenn in this last over. New batsman Rudra, just the last ball. Oh, he finishes off well. Wide signal here. Umpire is not allowing him to finish. He says it's a wide. Opens his arms, Sujit Rane. Score is 75. Still 1 ball left here. Glenn. Oh, perfect ball. Perfect over. Might be a run out. Whether it's easy, we have to wait. It is a run out signal here by the umpire. And he restricts the strong AM cricketers in the last over to just give away 5 runs. What a magnificent over that was from Glenn. And they managed to get a total of 75. So 80, which was thought, which was easy, has not been given by the Mandarin boys, but still 76 in 7 overs is not going to be easy run chase. AM cricketers will come to defend at 75 runs. Mandarin boys will look to get 76 runs. Let's see who will go to face Sati Mahalakshmi of 2M in the quarterfinals. Very good total posted by AM cricketers. Let's see whether they can defend it or whether Mandarin boys can chase this down. And let's hear it
the updates of this grand first day, second session from the voice of Jay Bosley. धन्यवाद हरीश सर। फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत इस मैदान पर। उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला इस मैदान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर एम क्रिकेटर्स ने रन बनाए हैं, जो कि 75, जीतने के लिए 76 रनों का लक्ष्य रखा है मानरेम बॉयज के सामने। और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल भट्टा और साथ साथ सोहेल शेख मैन फ्रॉम कुड़ाल, ये मैदान पर ये सलामी जोड़ी। और गेंदबाजी के मोर्चे पर विकी गेंदबाज। अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। अगर बात की जाए तो मानरेम बॉयज टीम में भी बेहतरीन ऑलराउंडर सोहेल शेख, गोपाल भट्टा, दाजी दुरत, संदेश कुंडाईकर, गौरेश कांबड़ी, अक्षय घाटवल, जॉन फर्नांडिस, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी। अब पहली बल्लेबाजी तो हो चुकी है और अब इस 76 रनों का रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी यहाँ पर करनी है विकी, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर और सामना करेंगे कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल भट्टा। ढेर सारा अनुभव, ढेर सारी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलने का अनुभव, और वही मैदान पर सामना करेंगे इस पहले ओवर की पहली गेंद का। दो ऑफिशियल्स आपको मैदान के अंदर, सुजीत राणे और अभिजीत तड़ेकर। मैं जय भोसले, मेरे साथ हरीश काकड़कर। आप सभी को कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त रन के साथ खाते की शुरुआत, रन संख्या को शुरुआत होती हुई इस मैदान पर। 7 ओवर का मुकाबला है और 7 ओवर में वो 76 रन बनाने हैं। मैं कहूंगा जिस तरह से शुरुआत मिली थी, 10 रन कम बनाए हैं जो एम क्रिकेटर्स ने।
वो अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, रिवर्स स्वीप, गेंद निकली है थर्ड मैन सीमा क्षेत्र से बाहर। 4 रन के लिए गोपाल भट्टा के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का पहला चौका। जैसे ही चौका लगा थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करी है। एक खिलाड़ी को डीप थर्ड मैन की दिशा में भेजा गया है और जो कि कवर पर खिलाड़ी था सीधा उसको थोड़ा सा अंदर बुलाया गया है। ओ ये अच्छी गेंद लोअर फुल टॉस लगभग ऑफ स्टंप यार्ड का डालने की कोशिश, सीधा विकेट कीपर सनम के पास पहुंची गेंद, वापसी करिए विकेट। एक चौका जरूर लगा, पहली गेंद वाइड डाली, उसके बाद रिवर्स का एक शानदार स्ट्रोक 4 रन का, टोटल 5 रन 76 रनों के जवाब में बगैर किसी नुकसान पर मांद्रे बॉयज मैदान पर। ओ ये बेहतरीन गेंद, उतना ही शायद बल्ले को लगकर निकली होगी, विकेट कीपर को नजदीक से चकमा देते हुए 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा, साथ साथ टोटल आगे बढ़ेगा 6 रन बगैर किसी नुकसान पर। स्ट्राइक पर सोहेल शेख एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी साथ साथ बल्लेबाजी में शानदार दमखम रखने वाला एक खिलाड़ी, लेकिन एक साझेदारी की आवश्यकता है। तो दूसरी तरफ से देखा जाए एम क्रिकेटर चाहते हो एक आध ब्रेक थ्रू जल्दी मिल जाए तो वापसी और मजबूती हो जाएगी अपनी टीम की। देखना है किसका नतीजा किसके पक्ष में चला जाएगा। फिलहाल तो फील्डिंग में तब्दीली कर दी गई है, लगभग थर्ड मैन पर कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में खिलाड़ी को बुलाया गया है। विकी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर आज 2 विकी, सुबह के सत्र में विकी पुजारी और ये गोवन खिलाड़ी विकी मैदान पर। और फिर एक बार इस बार चूके, थोड़ा सा अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फिर इस बार चकमा देने में कामयाब। गोपाल भट्टा ने उस अल्टी पल्टी पर 4 रन अर्जित किए थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर सोहेल को पूरी तरह से चकाती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। लगभग 11 के आसपास का औसत चाहिए, आस्किंग रन रेट है जो कि रन बनाने के लिए। 2 पावर प्ले के ओवर मिलेंगे, साथ साथ ये ओवर, हर एक ओवर में आपको बड़े शॉट की आवश्यकता होती है। फुल टॉस गेंद जमीन के सहारे, विद अलॉन्ग द कारपेट के सहारे, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर, लेकिन कवर बैकअप अच्छा होता हुआ मात्र मिलेगा सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ेगा 7 रन बगैर किसी नुकसान पर 76 रनों के जवाब में। एक मांद्रे बॉय जो कि पेडनेम तालुके से बिलोंग करने वाले, बारदेश तालुके से बिलोंग करने वाले खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे। अनंत मांद्रेकर की शानदार पारी, साथ साथ अमित की एक शानदार बल्लेबाजी की पारी मैदान पर देखने को मिली। सनम सालगांवकर ने 14 रन बनाए, 27 अमित ने 24। ओ ब्लॉक कॉल में यॉर्कर लेंथ की गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, ये ब्रह्मास्त्र कहा जाता है गेंदबाज का। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर में निकले हैं 8 रन। अंपायर का इशारा आता हुआ पावर प्ले का, ये बॉलिंग चॉइस जो कि फील्डिंग करने वाली टीम के ओर से ये पावर प्ले का ओवर लिया गया है। 2 पावर प्ले के ओवर मिलेंगे, एक होगा बैटिंग साइड से लिया जाएगा, एक बॉलिंग साइड से, क्योंकि आगाज हो चुका है बॉलिंग पावर प्ले का। उसमें भी आपको 2 खिलाड़ी मात्र 30 यार्ड घेरे के बाहर रखने की अनुमति, बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा मौका होता है ले, और गेंदबाजी के मोर्चे पर रोहित ये गेंदबाज नजर आते हुए। गोपाल भट्टा इस साल अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अच्छे रन बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इनकी खासियत है कि मैच को कभी छोड़ते नहीं है, आखिर के ओवर तक लेकर जाते हैं। उनको पता रहता है कि मैच कभी भी हाथ में आ सकता है, लेकिन आपको मैदान के ऊपर टिके रहना है। रोहित गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे गोपाल भट्टा। ओ इस बार खेलना चाहते थे, आगे निकलकर गेंद और बल्ले का उस तरह का संपर्क हुआ नहीं है। 1 रन और खाते में लिखा जाएगा, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा अब 9 रन पर बगैर किसी नुकसान पर 76 रनों का जवाब देते हुए
पूरी चुनिंदा टीम जो दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे। अनंत मांद्रेकर की 20 फोटक पारी, साथ साथ उसको बेहतरीन साथ अमित का यहाँ पर मिलता हुआ। अनंत मांद्रेकर ने 24 रन की शानदार बारी खेली। और सोहेल शेख के लिए गेंद टांगों के ऊपर थी, गेंद लगभग डीप स्क्वायर लेग के दिशा में जा रहे खिलाड़ी गेंद को रोकने की कोशिश करता, तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए 2 रन के साथ साथ टोटल अब डबल फिगर में परावर्तित, जो कि 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। लगभग प्रति ओवर 11 के औसत चाहिए था। पहले ओवर में एक चौका निकला, लेकिन उसके बावजूद निकले सिर्फ 9 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर इस मैदान पर। ये पावर प्ले का ओवर, शायद इस ओवर को बड़ा ओवर करने की कोशिश रहेगी दोनों बल्लेबाजों की। लेकिन बात की जाए तो पहले गेंद के ऊपर सिंगल निकला, उसके बाद दुक्का निकला, और अब थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। लगभग डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को भेजा गया है, मिडान वाले खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया है। ये फील्डिंग की सजावट। ओ ये अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, थोड़ी सी हार्ड लेंथ की जैसे गेंद थी। टिप्पा गिरने के बाद नीचे से निकली, विकेट कीपर के हाथ में बल्ला हवा में घूमता रह गया। डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली। और निश्चित रूप से जानते हैं जो कि एम क्रिकेटर्स की टीम की मैदान पर विकेट से ज्यादा बिंदी गेंदों का महत्व है। और जैसे बिंदी गेंद निकलती जाएगी वैसा वैसा दबाव जो है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर आ जाएगा। फिर एक बार यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की बारंबार कोशिश, गेंद और बल्ले का उस तरह का संपर्क हुआ नहीं। 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 12 रन बगैर किसी नुकसान पर 76 रनों के जवाब में। उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी 2023 आज का पहला दिन, ये दूसरा सेशन। रोहित गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर थे, क्या हाथ में कैच आया था, लेकिन रनआउट का खतरा हो सकता है। लेकिन ओ यहाँ पर देखिए कैच छूटा था, लेकिन दूसरा रन भागने की कोशिश में यहाँ पर ये सुसाइड वाला विकेट दे दिया। ये गोपाल भट्टा आउट होकर मैदान में वापस। कोई भी बल्लेबाज चाहता नहीं रन आउट होना। न्यू बैटर मैदान पर अक्षय घाटवाल, ऑलराउंडर खिलाड़ी, विस्फोटक बल्लेबाज, रन मशीन इन्हें कहा जाता है। और मैदान पर गोपाल भट्टा आउट होने के बाद रनआउट के रूप में दुर्भाग्य तरीके से आउट हुए। जीवनदान मिला था, कैच छूटा था, लेकिन उसके बावजूद रनआउट को वापस जाना पड़ा। पहले विकेट का पतन, टोटल 13 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। और खुद कर निकाली हुई गेंद गेंदबाज के नजदीक से खेला हुआ, जब तक फील्डर आते गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ अपना खाता खोला। सिंगल के साथ 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर 76 रनों के जवाब में। अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा हमारे और आता हुआ, और गेंदबाजी में पहला बदलाव, और गेंदबाजी के लिए निखिल आपको नजर आएंगे। निखिल दिग्विकर, उनके भाई यहाँ पर हमारे साथ बगल में बैठे हैं। आजकल
देखा जाए तो निखिल अच्छी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं और बद्री छाव में देखकर उनका खेल देखा करते हैं। शायद पावर प्ले का इशारा हुआ, इसीलिए गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पावर प्ले नहीं है तो विकी आएंगे गेंदबाजी के लिए। शायद पावर प्ले के लिए बचा कर रखा है निखिल को। अक्षय स्ट्राइक पर, बहुत बार ये उड़ता हुआ अक्षय हमने देखा है, यानी कि ये फील्डिंग में कमाल करता है और आजकल गेंदबाजी भी करता है। बल्लेबाजी तो इनकी खासियत थी ही, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में 100% योगदान। विकी गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे अक्षय घाटवाल। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, अभी भी 62 रनों के है और दरकार। ओ ये ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बार अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 15 पर। 61 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। वैसे तो दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका मुकाबला है, 2-3 बड़े शॉट मैच में और वापसी कर सकती है देखा जाए तो मानरेम बॉयज की टीम। तो दूसरी तरफ से 1-2 ओवर कसौट भरी होनी चाहिए। ओ अच्छी गेंद, क्या क्विकर डिलीवरी, बहुत ही तेज रफ्तार वाली गेंद, पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को। एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी थी, अक्रॉस हो गए थोड़े से, गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अनुभव पूरी तरह से नजर आता हुआ इन गेंदबाजों में। ओ इस बार उठा कर खेला, क्या इसमें दूरी है? निखिल वहां पर तैनात, कैच हुआ ड्रॉप। जैसे संदेश कुंडईकर ने वहां पर गलती करी थी, वैसे निखिल ने यहां पर गलती करी है। और आपने कैच किसका छोड़ा है? अक्षय घाटवल का। अगर ये इनका कैच छोड़ना, यानो ये मारेगा कम और घसीटेगा ज्यादा। ये खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करता है, कब मैच लेकर उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 2 रन और 2 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ा है 17 पर। मौका बनाया था विकी ने अपने टीम के लिए। ओ क्लीन बॉल, यू मिस, आई हिट। चलिए पेविलियन के गले, तू नहीं तो और सही। मिलकर तो भाग भाग के थक चुके हैं, अब भागने की बारी है बल्लेबाजों की। रन बनाने के लिए भागना पड़ेगा। मैदान पर गेंदबाज भाग रहे, फील्डर भाग रहे। न्यू बैटर मैदान पर, मैन फ्रॉम सिंधुदुर्गा बबल नाइक, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, ये भी आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज है। अक्षय को जीवनदान मिला था, कैच छूटा था और जो कि क्लीन बोल्ड हो गई वहां पर। जैसे ही अगर बात की जाए, गोपाल भट्टा का भी कैच छूटा था लेकिन वो रन आउट हो चुके थे। यानी कि दोनों बल्लेबाजों को मौके जरूर मिले थे लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है 50% आपका प्रयास और 50% नसीब का साथ, और हमेशा कहा जाता है वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे जितना प्रयास करो। जो लिखा है वही तो यहाँ पर घटना है। विकी गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे बबल नाइक। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक देखिए, आते आते एक शानदार स्ट्रोक, जैसे सुई में से धागा भी रोया गया। गेंद सीमा पर 4 रन के लिए। इसे कहते हैं सीधी उंगली से घी जब निकलता नहीं ना तो उंगली टेढ़ी करना। 4 रन। ओ यार कर लेंगे गेंद, ये बहुत ही बढ़िया, ये अच्छा डालते हैं, ये तेज फेंकते हैं और बल्लेबाज को समझ में आते आते गेंद निकल जाती है विकेट कीपर के हाथों में। चौके के साथ खुद का खाता खोला,
टोटल जो कि पहुंचा 21 पर, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर एक बार विकेट अब तक की बात की जाए, ठीक ठाक ओवर रहा है ये, एक विकेट निकला है और अब निकली अगली गेंद, अच्छी गेंद इस बार हाफ अली बनाकर शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलना चाह रहे थे, जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन और खाते में जोड़ता हुआ, एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 22 रन। थैंक यू डीजे। अब अंपायर का इशारा, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का, गेंदबाजी में आ रहे हैं गेंदबाज रोहित, ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर बात की जाए इस मुकाबले का सूरत हाल आपको बताया जाए, 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 54 रनों की आवश्यकता, 24 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 54 रन रिक्वायर्ड, 22 रन बन चुके हैं, 76 रनों के जवाब में 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। ये पावर प्ले का ओवर काफी मायने रखेगा, लेकिन रोहित ने अच्छी गेंदबाजी करी है, पहला ओवर डाला है और पहले ओवर में रोहित ने सिर्फ 6 रन दिए हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है अपनी टीम के लिए। अब देखना है ये ओवर टीम के लिए, इस मुकाबले के लिए काफी महत्वपूर्ण, इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है शायद, देखा जाए तो मांद्रेम बॉयज के दृष्टिकोण से 2-3 बड़े हिट मैच में मजबूती के साथ वापसी कर सकते मांद्रेम बॉयज की टीम। स्ट्राइक पर बबल, ओ यार कर लेंगे गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से, यहाँ पर थोड़े से फंबल हो गए, विकेट कीपर बीड हो गए थे बल्लेबाज, अंपायर का इशारा 22 का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 76 रनों के जवाब में अभी भी 53 रनों की आवश्यकता। मैच इस तरह से देखा जाए तो किसी के हाथ से छूटा नहीं है, दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका, एक आध 2 ओवर अच्छे डाले जाए तो मैच यहाँ पर एम क्रिकेटर्स के हाथों में चला जाएगा और 2-3 बड़े हिट मैच जीतने की आशंका बढ़ जाएगी मांद्रेम बॉयज टीम की। होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट में उल्टा फेर होते हुए देर नहीं लगती, ये हमने कई बार देखा है, आज के दिन में भी देखा है। और इस बार देखिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ लिया, मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी थे उसके हाथ में और सोहेल शेख की पारी यहां पर समाप्त होते हुए, तीसरे विकेट का पतन। थैंक यू। न्यू बैटर मैदान पर, हम हमेशा कहते हैं जिनका चेहरा है खूबसूरत उनका नाम है दाजी धुरत, लेकिन अब विपरीत परिस्थितियां, यहाँ पर उनको बल्लेबाजी भी खूबसूरत करनी पड़ेगी तभी मैच बनेगा यहाँ पर, लेकिन काम कर गए यहाँ पर रोहित, एक बड़ा शॉट लेकिन ताकत नहीं कर प्रदान कर पाए उस शॉट के पीछे सोहेल शेख, और एक आसान सा कैच मिड विकेट के ऊपर देकर वापस खेमे में आराम फरमा रहे हैं सोहेल शेख। अब देखना है दाजी धुरत क्या करते हैं। उल्टा गेंद इस बार निश्चित रूप से खेला हुआ सीधा स्ट्रोक, अंपायर की आवाज यहाँ पर हमारे कानों तक जरूर आई है और एक रन तो निश्चित रूप से खाते में लिखा जाएगा और फ्री हिट का इशारा, नो बॉल। और जी हाँ, हमारे पास आवाज जरूर आई थी, इशारा भी आया था, नो बॉल और साथ साथ मिलेंगे फ्री हिट, कुल मिलेंगे ये 2 रन, यानी कि अगला मौका जो होगा तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को जी चाहे मन चाहे जहां चाहे शॉट खेलने का मौका, आउट होने का खतरा सिर्फ यहां पर रन आउट का, ये हाथ खोलने पड़ेंगे बबल को इस
मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। टोटल की अगर बात की जाए, टोटल पहुंचा है 25 रन पर। 25 51 रनों की और आवश्यकता। ये फ्रेट की गेंद, ओ इस बार जाया गई फ्रेट की गेंद, शायद रनआउट का खतरा भी हो सकता था, डायरेक्ट हिट हो जाता तो 19-20 का मामला देखने को मिलता। एक रन और खाते में जुड़ा सिंगल के साथ, टोटल पहुंचा 26 रन। 50 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। मैच देखा जाए तो धीरे धीरे, जो कि बात की जाए, एम क्रिकेटर्स के अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, कोई आजादी नहीं बल्लेबाजों को, लेकिन मैच पलटते देर नहीं लगेगी। दाजी स्ट्राइक पर, ये स्लोवर वन, फंस गए, स्लोवर वन में फंस गए, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ यहां पर कैच ड्रॉप हो गया। और एक यानी कि फिर एक बार अंपायर का इशारा आएगा। फ्रेट, ये दूसरा नो बॉल इस ओवर का। कुल 2 रन के साथ टोटल 28 पर 28, 48 रनों की आवश्यकता। देखिए क्या क्या घट रहा है मैदान पर। फ्रीड का पहला मौका मिला था वो भी बबल को ही, अब भी मौका मिला है वो भी बबल को। पहला मौका जाया गया था, देखता है ये मौका फ्रीड का क्या करते हैं। एक बड़ा शॉट अगर आ जाए तो नव संजीवनी यहाँ पर मिल सकते हैं सामने वाली टीम को, लेकिन गेंदबाजी अच्छी रोहित की मैदान पर, थोड़े से ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं। ओ ये भी गेंद, इस बार डॉट निकली, बिंदी निकली। इसे कहते हैं एक तेरी एक मेरी। देखिए दोनों फ्रीट के ऊपर बड़े शॉट आए नहीं, अच्छी वापसी, बेहतरीन एक सटीक लाइन, अनुशासित भरी गेंदबाजी। 2 नो बॉल जरूर डाले हैं, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया बड़े शॉट खेलने का। स्कोर 28 के ऊपर ही रुका हुआ। ओ इस बार उठाकर खेला है क्या, इसमें दूरी है, भाग रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन सिर्फ जाएंगे गेंद लाने के लिए। दर्शक बने 6 रन, जिस शॉट की आवश्यकता बेहतर थी वो निकला 6 रन का। थैंक यू। फ्रीट के ऊपर तो बड़ा शॉट निकला नहीं, लेकिन अच्छी गेंद के ऊपर ये बड़ा शॉट 6 रन का। देर आए दुरुस्त आए, टोटल पहुंचा 34 पर 34। अभी भी 42 रनों की और आवश्यकता। मैच बनेगा, एक आध दो बड़े शॉट अगर निकल आए तो मैच बनेगा। पकड़ बनाए रखी है एम क्रिकेटर्स ने, लेकिन देखने वाली बात होगी ये पकड़ आखिर तक मजबूत रख पाते हैं नहीं एम क्रिकेटर्स की टीम इस मैदान पर। इस बार थोड़ी सी घूम कर खेला स्ट्रोक अनंत मांद्रेकर स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए। एक ही रन मिलेगा, सिंगल ही मिलेगा। थ्रो देखिए कितना सटीक यहाँ पर आता हुआ। 7-7 ओवर समाप्त होता हुआ चौथा। 4 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल 35 रन स्कोर बोर्ड पर। अब बचे 18 गेंदे और 18 गेंदों में और चाहिए 41 रन। 18 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 41 रन रिक्वायर्ड। हेलो पूर्वेश, वायरलेस। हेलो, गेंदबाजी में और एक बदलाव, और गेंदबाजी के लिए रोहित हड़नकर एक अनुभवी गेंदबाज आपको नजर आएंगे। सामना करेंगे बबल नाइक। एक छक्का बबल नाइक के बल्ले से निकल चुका है। अब 18 गेंदे और 41 रन, ये है इस मुकाबले का समीकरण। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, यहाँ पर छोटी गेंद थी, निश्चित रूप से बल्ला
पहले घुमा चुके थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, कुल 2 रन, 22 का एक सिंगल, कुल 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ साथ टोटल 37 रन पर अब पहुंचा है। मैच में अब थोड़ी सी जैसे जैसे गेंदें नजदीक चली जाएगी वैसे वैसे इस मुकाबले का सूरत हाल और रोमांचक नजर आएगा मैदान पर। देखने वाली बात तो निश्चित रूप से है। और रोहित फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, और इस बार थोड़े से बैकफुट पर चले गए लेकिन ताकत यहाँ पर जी नहीं प्रदान कर पाए। दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ पर कैच को लपक लिया, एक शानदार कैच को अंजाम दिया निखिल ने और दाजी की पारी यहाँ पर समाप्त होते हुए चौथा विकेट वापस खेमे की ओर। न्यू बैटर मैदान के अंदर दाखिल होते हैं, मैन फ्रॉम मोरजिम दत्तराज। थोड़ा सा ताकत कम पड़ गया, नेहल के हाथ से भी निखिल के हाथ से गेंद चिटक रही थी लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को तब्दील कर दिया। रोहित हड़नकर अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद वाइट लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आमंत्रित कर दिया था, इनवाइट किया था बड़ा शॉट खेलने के लिए और वो खेला भी दाजी ने लेकिन ताकत नहीं प्रदान कर पाई, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। अब सावधा करेंगे दत्तराज रोहित की अगली गेंद का। ये गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल अब पहुंचा 38 रन पर और 38 रन की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। स्लोवर वन डिलीवर है, ये स्लोवर वन, अपील थोड़ी सी की थी जरूर लेकिन अंपायर को पता था गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। आजकल हर डॉट गेंद जब विकेट कीपर के हाथ में निकल जाते हैं ना, एक दबाव डालने की कोशिश की जाती है अंपायरों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी रोहित हड़नकर के इस मैदान पर। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी, लेग गली की दिशा में जब तक फील्ड की जाती, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ, एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 39 रन पर पहुंचा है टोटल। 37 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला। वैसे तो देखने के लिए ये 5 बड़े शॉट का खेल है लेकिन वो शॉट आने चाहिए और समय पर आने चाहिए। ओ बबल चूके, ये मौका था, छोटी गेंद थी, शायद इसका इंतजार कर रहे थे लेकिन शॉट जल्दी खेल बैठे और गेंद बाद में निकली, थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी और मौका था शायद बल्ले में आ जाती तो 6 रन के लिए निकल जाते। शायद ये डॉट गेंद काफी चुभेगी बाद में जब विश्लेषण किया जाएगा हार और जीत का। तब फिर एक बार रोहित, अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी, इस बार आगे निकले, शानदार कवर ड्राइव, गेंद का पीछा किया जा रहा है, निखिल जीतता नहीं नजर आया, गेंद जीतते हुए शानदार कवर ड्राइव, गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जो टोटल पहुंचा 43 पर, 43 रन स्कोर बोर्ड पर। और फिर एक बार रोहित, अच्छा और लग रहा था, ये चौका शानदार, नजाकत बरस टूक। इस बार आगे निकले थे खेलने के लिए लेकिन गेंद और बल्ले का उस तरह का संपर्क हुआ नहीं, मात्र मिला सिंगल के साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ ये यहाँ पर 5 ओवरों का खेल समाप्त, टोटल 44 रन 44, 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 32 रनों की और आवश्यकता, 12 गेंदे और 32 रन की है जरूरत। एक तर मार्फत
वैसे तो इनका बबल नाइक की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, मिड विकेट यानी डीप स्केल का ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, लेकिन आज थोड़ा सा वो छोटी गेंद के ऊपर चूके, वरना ऐसे गेंदबाज 100 में से 99 बार वो सीमा रेखा पार भेजने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में अब मात्र आते हुए निखिल, काफी इंतजार करवाया निखिल ने गेंदबाजी के लिए। 12 गेंदे 32 रन, प्रति ओवर 16 रन की आवश्यकता। मैच का सूरत हाल देखिए, 12 गेंदों में चाहिए 32 रन, क्या होगा देखने वाली बात तो है। बबल है स्ट्राइक पर और निखिल की पहली गेंद का सामना करने के लिए। ओ इस बार देखिए, मैंने यही बात करी थी, गेंद आएगी, जरूर आएगी 6 रन के लिए। छक्के के साथ 50 रन भी यहां पर पूरे होते हुए मानरेम बॉयज टीम के। अभी भी 26 रन की आवश्यकता। मैच देखिए, मैंने कहा उल्टा फेर होते देर नहीं लगती। ओ ये थोड़ा सा अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश करे और इस बार सीधा विकेटों के ऊपर। पल में फाशा पल में फाश, एक तेरी एक मेरी, चलिए पेवेलियन के गली। क्यों 23 रनों के एक शानदार पारी को समाप्त कर दिया। न्यू बैटर जॉन फर्नांडिस मैदान पर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, और एक ये धुआंधार बल्लेबाजी करता ही है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट इनके अगर देखे जाए, सिंगल को डबल में तब्दील करने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। अब शायद फिर एक बार निखिल, और इस बार खेलना चाहते थे, कई गेंद निकली नहीं, सिर्फ बैक टू द बॉलर का ये स्ट्रोक था। डॉट निकली, बिंदी निकली। अभी भी 26 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एक छक्का लगाया, शायद आशाएं पल्लवित करी थी मुकाबले में। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, गैप में से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। जॉनी जॉनी, यस पापा, रन बनाएंगे, यस पापा। थैंक यू। टोटल पहुंचा है 54 पर, 22 रनों के और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। निश्चित रूप से शायद थोड़े से दबाव, ये दबाव देखिए किस तरह से गेंदबाज के ऊपर है, किस तरह से फील्डिंग के ऊपर है। ओ ये थोड़ी सी छोटी गेंद थी, बल्ला तेजी से घुमाया था, शायद रडार में आ जाते और एक बड़ा शॉट निकल आ जाता। ले होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर को कोई स्थान नहीं होता। ये फिर एक बार आपको देखने को मिला। अच्छी वापसी करी है निखिल ने इस मैदान पर। ओ फिर एक बार, इस बार भी चुके, यहाँ पर सिंगल जरूर निकलेगा, दूसरे की मांग होगी नहीं। शायद तेजी के साथ खिलाड़ी वहां पर आते हुए, एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे जॉन। टोटल 55 पर, यानी कि अब 6 गेंदों का खेल बाकी आखिरी और 21 रनों की और आवश्यकता। देखिए बात की जाए तो गेंदबाजी अच्छी डाली थी गौरीश कांबड़ी ने। रेडी एक्सप्रेस ने 13 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया था 2 ओवर में, लेकिन वो 2-3 ओवर, चौथा और 5वां ओवर, जिस ओवर में 30 रन निकले, वहीं पर मैच हाथ से। और पेनल्टी, जी हाँ, यहाँ पर पेनल्टी मिल चुकी है। एक खिलाड़ी आपको 30 यार्ड घेरे के अंदर लाना पड़ेगा, ये पेनल्टी है, समय का तगादा। दूसरी बार पेनल्टी इस मैदान पर आज के दिन में आपको दिखाई देगी। जो आपको समय दिया गया है, उस समय के अनुचित आपका आखिरी ओवर शुरू होना चाहिए, वरना आपको एक खिलाड़ी की पेनल्टी जो कि अंदर 30 यार्ड सर्कल के अंदर आपको लाना पड़ेगा, और ये फायदेमंद हो जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को। आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज प्रीतेश, 6 गेंदे 21 रन, स्ट्राइक पर जॉन। कौन बनेगा हीरो? क्या जॉन ही कहेंगे यस पापा, या प्रीतेश? ये 21 रन डिपेंड करने वाली गेंदबाजी मैदान पर कर पाते हैं। देखिए दबाव, देखिए किस तरह से मैदान पर, और ये हमेशा होता है, दो तगड़ी टीमें आमने सामने होना तो इस तरह का कुशल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। 21 रन 6 गेंदे।
और इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश, लेकिन बड़ा शॉट नहीं निकला, एक ही मिलेगा। अब बचे 5 गेंदे और 5 गेंदों में चाहिए 20 रन। 5 चौके से भी मुकाबला समाप्त हो सकता है, 3 छक्के से भी मुकाबला समाप्त हो सकता है, लेकिन वो आने चाहिए। लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर एम क्रिकेटर्स टीम के, शानदार सटीक गेंदबाजी, किसी बल्लेबाज को रुकने का मौका नहीं दिया। एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 23 रन बनाए, लेकिन जिस तरह से तेजी बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती, और जिसके चलते हुए ये मुकाबले का सूरत हाल आपको देखने को मिल रहा है इस आखिरी ओवर में। 5 गेंदे और 20 रनों की है जरूरत। ओ यॉर्कर लेंथ की गेंद, यहाँ पर अपील, हाउस दैट, और लेग पेपर, विकेट निकलता हुआ वापस। थैंक यू। न्यू बैटर संदेश कुंडईकर, सैंडी के नाम से जाने जाने वाला ये खिलाड़ी, निश्चित रूप से इस खिलाड़ी के नाम के ऊपर बहुत सारे कीर्तिमान है। लगातार 9 गेंदों में 9 छक्के लगाने का कारनामा इन्होंने कर दिखाया, लेकिन वो 9 छक्के की अब तो आवश्यकता नहीं है। आपके बल्ले से चाहिए सिर्फ 3 बड़े शॉट अपनी टीम के लिए। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए, 2 डॉट गेंदे मैच जीतने के लिए काफी होगी सामने वाली टीम के लिए। क्या होगा, संदेश कुंडईकर स्ट्राइक पर थोड़े से देर आ गए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा दुरुस्त आए हैं या बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ओ ये अच्छी गेंद, दूर से खेलने की कोशिश करी है, वापस जाना पड़ेगा जॉनी को। अब 3 गेंदों का शायद खेल बचा है और रन चाहिए 20। यहां से अगर तीनों डिलीवरी, लीगल डिलीवरी अगर डाल देते हैं तो मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है। शायद अब सोचने के लिए मजबूर हो रही है मांद्रेम बॉयज की टीम कि हमने गलतियां कहाँ करी है। जो अच्छा मुकाबला लग रहा था पहले 3 ओवर में, वो 17, 15, 15, वो 3 ओवर ने मुकाबले का रुख ही बदल दिया, और जिसके चलते हुए एक बड़ा टोटल 7 ओवर में शाम के वक्त इस मैदान पर। इसलिए कहा जाता है बाद में पछतावा करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। और इस बार हवा में खेल बैठे हैं खिलाड़ी, दूर है, मिलेगा मात्र सिंगल। सिंगल से फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब लगभग 1 पांव जीत की कगार के ऊपर खड़ी कर चुके हैं। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और जीतने के लिए 19 रनों की है आवश्यकता। स्लोअर 1 डिलीवरी, यहां पर वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल। अब 2 गेंदों का खेल बाकी है और 18 रनों की आवश्यकता। अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। इस बार बल्ले को लगी, सिंगल जरूर निकलेगा, लेकिन जीत की मोहर लगभग एम क्रिकेटर्स के नाम के आगे लगती हुई। अगला इस आज के दिन का आखिरी मुकाबला शाम का अभी खेला जाएगा। इस मुकाबले के बाद जो कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा, इसमें जीतने वाली टीम तुएम के साथ, तुएम की टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए आइए जल्दी। और लीगल डिलीवरी, इसके साथ ये मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं एम क्रिकेटर्स की टीम। अब उनका मुकाबला होगा